اور شام کا اس زمانے میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا دی اسٹار. اس سے میں نے آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر جس میں کہیں بھی ماشاء اللہ کا ذکر ہو, چاہے وہ ملک سے باہر کا ماشاء اللہ ہو, وہ بھی خبر نکال دی جاتی تھی. تو ایوری نیوز پیپر ہیز اٹس اون آئیڈیاز. بیسکلی جرنلزم از اے رسپانسبلٹی. فیک نیوز بہت افیکٹو ہوتی ہے. Social media on mainstream media. Please have a huge round of applause for him. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گرینوچ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو, ان کے آرگنائزرز کو مبارکباد دوں گا. بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آج کی میڈیا کے حوالے سے, اس لیے کہ جس زمانے میں میں نے جرنلزم شروع کی تھی اور جب میں ایم اے میں ایڈمیشن لینے جا رہا تھا, میرے فادر جو تھے ہی واز این ایجوکیشنسٹ, تو ان سے میں نے کہا کہ میں جرنلزم پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بہت اچھا سبجیکٹ ہے یہ, لیکن ایک کوشن ہے کہ اس میں پیسے کم اور عزت زیادہ ملتی ہے. تو اب یہ تمہاری چوائس کے اوپر ہے کہ تم نے پیسہ کمانا ہے کہ عزت کمانی ہے. So when I started my profession on August 1st, 1982, وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. وہ پیریڈ تھا کمپلیٹ سینسرشپ کا. اور شام کا اس زمانے میں ایک اخبار نکلا کرتا تھا دی اسٹار. اس سے میں نے آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز اے کب رپورٹر. صبح 9 بجے ہمیں دفتر پہنچنا ہوتا تھا. اخبار کی کاپی ڈاؤن ہونی ہوتی تھی اراؤنڈ 11 AM. اس سے پہلے جو مرحلہ تھا which is very important for the student of journalism, ہم وہ کاپی لے کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جاتے تھے. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا, خبریں جو ہیں وہ پیسٹ کی جاتی تھیں. تو انفارمیشن آفیسر ود اے لو IQ وہ خبریں نکال لیا کرتے تھے کہ یہ خبر نہیں جائے گی. اور جب ہم واپس دفتر لے کے کاپی جاتے تھے تو آدھا اخبار رہ جاتا تھا, کیونکہ ہر اس خبر میں جس میں کہیں بھی ماشاء اللہ کا ذکر ہو, چاہے وہ ملک سے باہر کا ماشاء اللہ ہو, وہ بھی خبر نکال دی جاتی تھی. تو جب نیوز پیپر مارکیٹ میں آتے تھے تو اس میں بہت سے بلینک سپیسز ہوتے تھے, اور ان بلینک سپیسز کے ساتھ لوگ بڑی حیران کن طریقے سے وہ اخبار پڑھا کرتے تھے. تو دین دی اتھارٹیز ریئلائز کہ اس سے میسیجنگ ہو رہی ہے, اس سے لوگوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ سپیس بلینک کیوں رہ جاتے ہیں. جو ایک عام ریڈر تھا وہ یہ کوسچن کرنے لگا تھا, اور اس کوسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ یہ میسیجنگ, اب آج کے سوشل میڈیا کی میسیجنگ اور اس پیریڈ کی میسیجنگ کا آپ اندازہ کریں کہ بلینک اسپیس جو تھا وہ میسج تھا فار دا ریڈر کہ ہر چیز نہیں بتائی جا سکتی. تو اس کے بعد ایک پریس ایڈوائز آئی کہ ناؤ یو ہیو ٹو فل دوز اسپیسز. آپ نے اسپیس بلینک نہیں چھوڑنا, آپ نے کوئی نہ کوئی خبر اس کی جگہ لگانی ہوتی ہے. تو ایوری نیوز پیپر ہیز اٹس اون آئیڈیاز کہ ہم اس میں کیا خبریں لگائیں. جو اس زمانے کی اپوزیشن کے پیپرز ہوتے تھے, جیسے امن اخبار ہوتا تھا, تو وہ
وہ خبر لگا دیتا ہے کہ میکسیکو میں آمریت کے خلاف جدوجہد. تو مختلف کنٹریز میں تو وہ بھی ایک میسیجنگ کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہاں نہیں لیکن باہر بھی آمریت کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے. تو جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ میسج لے لیتے تھے. تو یہ مختلف فارمز آف وہ تھی اس میں. بیسکلی جرنلزم از اے ریسپانسبلٹی. If you are not responsible, because journalism is for the public service, you have to inform the people, اور وہ بھی حقائق کی بنیاد پر. کیونکہ اگر آپ غلط انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، جسے آج کے ٹرم میں، آج کی ڈیجیٹل ٹرم میں فیک نیوز کہتے ہیں. فیک نیوز بہت افیکٹو ہوتی ہے بیکاز نیگیٹیوٹی آلویز سیل. کوئی بھی نیگیٹو چیز ہوگی نا وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی. آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں، ٹی وی ویورشپ ٹو می از سم تھنگ ڈفرینٹ. کہ ایک شو کو اتنے لوگوں نے ویو کیا اور ایک شو کو اتنے لوگوں نے لائک کیا. ہمارے یہاں جو ریٹنگ فارمولا بنا الیکٹرانک میڈیا کا، وہ فارمولا یہ بنا کہ کتنے لوگوں نے اس پروگرام کو ویو کیا. اور یہی سب سے بڑا فلا تھا الیکٹرانک میڈیا کا. کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی شو میں لڑائی ہو رہی ہے تو ہر آدمی رک کے دیکھے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن کیا وہ آدمی اس پروگرام کو لائک بھی کر رہا ہے یا صرف ویو کر رہا ہے؟ اور اس سے پھر جب یہ ریس شروع ہو گئی کہ جی کسی نے گلاس اٹھا کے کسی کو مارا، کسی نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے آستینیں چڑھا لیں یا گالم گلوچ ہو گئے، تو ایوری ون ول ویو دیٹ شو. لیکن اس کے بعد وہ اسی پروگرام کی برائی بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا مذاق بنا لیا آپ لوگوں نے. تو ہمارے ریٹنگ فارمولے نے پلس جو الیکٹرانک میڈیا آیا ان 2001، اسٹارٹیڈ ان 2001، وہ جنرلی بھی ایون فرام دا پرنٹ ڈیز اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں 3 گروپ جو ہے وہ گرو کر رہے تھے. ایک کو بہت قیام پاکستان کے 10 سال کے اندر ہی اس کو فارغ کر دیا گیا. پروگریسو پیپرز لمیٹڈ جو تھا، اس میں بہت اچھے اخبارات چھپ رہے تھے. لیکن جب پہلا مارشل لا لگا تو اس سے ٹیک اوور کر لیا گیا. پاکستان میں فرام دا ڈے ون فریڈم آف ایکسپریشن ایک ریاستی فیصلہ تھا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں دینی. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں جو آزادی ایکٹ تھا جس کے تحت قوانین بنائے گئے، اس میں آل دوز لاز جو کلونیل ایرا کے تھے وہ سب یہاں اپلائی کر دیے گئے، جس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جس میں اور بہت سے، آپ اگر دیر از اے سیریز آف لاز آپ دیکھیں، اگر ان کی پوری ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. کوئی 1860 میں بنا، کوئی 1923 میں بنا. یہ سارے قوانین جو تھے پاکستان میں لاگو کیے گئے فرام دا ڈے ون. اینڈ دیٹ از وائی in 1948 within few months after the independence dozens of newspapers were banned. Many journalists and editors were arrested. تو جو پروگریسو تھاٹس تھیں، جو لوگوں کو انفارم کرنے کے ذرائع تھے، اس زمانے میں ظاہر اخبار ہی واحد ذریعہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا، ان سب پر پابندی لگا دی گئی. اور اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا ایسٹ پاکستان پر.
क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। एक ऐसा डिस्कनेक्ट हो गया जिसका इंपैक्ट हमें 1971 में जाके मिला। जो चीज शुरू हुई थी 1948 उसका अल्टीमेट फॉल आउट हमें, क्योंकि जराए खत्म हो गए थे 1000 मील दूर। आपको नहीं पता कि जो वेस्ट पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स में छप रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट था जो ईस्ट पाकिस्तान के अखबारात में छप रहा होता था। तो एक डिस्कनेक्ट हो गया। फ्रॉम द डे वन वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। Many journalists were flogged, many journalists were killed, many newspapers, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन रह गए वो दो इंस्टीट्यूशन रह गए पाकिस्तान में मीडिया के, एक डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, द अदर इज यंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। और यही आज तक अगर सही मानों में आप देखें तो यही दो मीडिया ग्रुप्स हैं। और फिर इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन दो मीडिया ग्रुप्स पर अटैक हुआ। एक डॉन लीग के बाद डॉन पर अटैक हुआ और हामिद मीर के केस के बाद जियो अंडर फायर आया। और अब मीडिया इतना कंट्रोल्ड है कि देयर वाज अ मीटिंग ऑफ न्यूज़पेपर ओनर्स जिसमें उन्हें 3 मिनट में यह बता दिया गया कि आपने क्या नहीं देना, और उसके बाद ये पैमरा, ये पैका, ये साइबर रेस। तो एक कंट्रोल्ड मीडिया, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि फेक न्यूज कितनी जा रही है, उन्हें प्रॉब्लम है कि फैक्ट्स कितने बताए जा रहे हैं। जो लोग पैका ऑर्डिनेंस जैसे पैमरा लाया गया टू रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब वो हमारे न्यूज रूम तक आ गए हैं। अब उनका आज का मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि सहाफी कौन होता है और सहाफत क्या होती है। जिस दिन हमें यह समझ में आ गया कि सहाफी कौन होता है उस दिन हमें सहाफत समझ में आ जाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं सहाफी हूं, मेरा ये बताना जरूरी है कि मैं सहाफी क्यों हूं और सहाफत क्या है। आप प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें, आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लें। But there's a difference between social media and digital media also. So it's race against time. Today's media is race against time. आपको सेकंड्स में हजारों की तादाद में पोस्ट मिलती हैं, लाखों की तादाद में आपको नजर आता है कि किसी टिकटॉकर के लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब वो लाखों फॉलोअर्स पर आप कभी अपील करते हैं कि यार फलां जगह आ जाना जलसे में, तो 1000 लोग भी नहीं आते। क्यों? फिर वही बात है कि if someone is following you doesn't mean कि वो उसे पसंद भी कर रहा है, वो आपको लाइक भी कर रहा है। हम घर बैठे, जाहिर है अब आज के मीडिया जो है आपके बेडरूम तक पहुंच गया है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो। आपका चौकीदार चौकीदारी कम करता है, व्हाट्सएप ज्यादा देखता है। And it's world over. So it's a challenge for the entire media. Today's media is a challenge for the entire media. क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि what is right, what is wrong. आप गाजा क्राइसिस देख लें, आप यूक्रेन क्राइसिस देख लें, और इन द रिसेंट हिस्ट्री ये सारा फिनोमेना
हमें नजर आया, सबसे पहले इसका इम्पैक्ट नजर आया हमें अरब स्प्रिंग में, ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग। और उसमें बहुत सी चीजें तब्दील हुई, उसके बाद पूरा मिडल ईस्ट तब्दील हो गया। और अभी रिसेंट आप देख लें कि व्हाट इज द बिगेस्ट न्यूज यस्टरडे, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे अमेरिकन सोसाइटी में, कि किसी को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। बिल्कुल मुझे लगा जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें सर्वे लास्ट इलेक्शंस के, अमेरिकन इलेक्शंस के, तो जो फेक न्यूज थी उसकी फॉलोइंग फैक्चुअल न्यूज से ज्यादा थी। और ज्यादातर फेक न्यूज के जो फॉलोअर्स थे वो प्रो ट्रंप थे, लेकिन ट्रंप लॉस्ट द इलेक्शन। और ये जो फिनोमेना है, ये इसलिए मुझे, मतलब मैंने प्रिंट में कई साल काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई साल काम किया। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं छोड़ते। मैंने कहा एक दुकानें लगी हुई हैं, तो लोगों को दुकानदारी करने दें, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं। बहुत से लोगों को, आई मीन इवन लीगली बहुत से लोगों ने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं इसमें। इफ यू हैव अ फॉलोइंग से अराउंड 500,000, लेकिन क्या वो मैसेजिंग आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है? और इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस है, और मुझे वो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा है जब मैं रीसेंट लिटरेचर फेस्टिवल्स में गया। जब मैं कराची एक्सपो सेंटर में किताब मेले में गया, तो मैंने देखा वही हजारों लड़के लड़कियां जिनके हाथ में मोबाइल थे, लेकिन उनके दूसरे हाथ में किताब थी। और वो एक रे ऑफ होप है, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा कन्विक्शन ये है कि अल्टीमेटली वर्ड विल सर्वाइव, नॉट द वॉइस। और वो इतना इफेक्टिव होता है कि जो अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके कितने भी लाखों फॉलोअर्स हो, आप न्यूज नहीं पिक कर सकते, क्योंकि यू हैव टू हैव अ न्यूज सेंस। अगर न्यूज सेंस नहीं है आपको, कि एक मेरे सामने अगर हजारों पोस्ट है, उसमें से मैं देखूंगा कि इसमें से खबर क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम कोई बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज आती है, हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसके असरात क्या हों। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो चीज मुझे किसी ने भेजी है ये फैक्चुअल है या फेक है, एंड आई डोंट हैव दोज सोर्सेज ऑल्सो। फर्स्ट करें, आम आदमी है, मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन ये आम आदमी को कोई पोस्ट आती है तो उसे नहीं पता कि ये फैक्ट्स हैं या फेक है, वो उसे फैक्ट्स ही समझता है, और उसे अगर अच्छी लगती है वो फॉरवर्ड कर देता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। और यही वो चीजें आती हैं कि जहां आप कभी ना कभी फंस जाते हैं। और दैट इज अ वेरी डेंजरस साइड ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि मैं रियलाइज नहीं करता कि जो चीज मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं वो क्या है उस पर। तो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर द एंटायर मीडिया। और कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया कौन सी फॉर्म ऑफ मीडिया है? इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरीवन, ऑफ एवरी सिटीजन,
कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आपको पता चल जाता है, आपकी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप कौन है। मुझे समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती कि इट्स अ सीरियस पोस्ट और अ नॉन सीरियस पोस्ट। इसलिए यू हैव टू रियलाइज, जो भी आपके पास पोस्ट आए, यू हैव टू रियलाइज कि ये इसके अंदर, और इफ इन डाउट लीव इट आउट। आप चेक कर लें, अपने दोस्तों से चेक कर सकते हैं कि यार ये जो पोस्ट आई है, ये इसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खास तौर पे समथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, समथिंग टू डू विद सिक्योरिटी, something to do with social fabrics. ये तीन ऐसे एरियाज हैं जहां यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो सोशल मीडिया पे चीज आती है, उसका इम्पैक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या पड़ता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहां प्रोफेशनलिज्म इज डाइंग। और हमारे जो इदारे हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, उसमें जो लोग इस वक्त जो हायरिंग होती है और जो फायरिंग होती है, हमारे यहाँ फायरिंग ज़्यादा होती है, हायरिंग कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कम लोगों को रख के ज़्यादा काम करवाया जाता है। उसमें मैं जो चीज़ सोशल मीडिया से पिक करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे डालता हूँ, तो मैं दरअसल उस पोस्ट को क्रेडिबिलिटी दे रहा होता हूँ। And that is why mainstream media still has more credibility than the social media. क्योंकि जब चीज एक जगह से आपको मेन स्ट्रीम पे नजर आएगी, तो उसका मतलब ये होगा कि ये इसका मतलब है ये चीज सीरियस है। जिस तरह मीडिया में कहते हैं कि यार ये चीज अगर फुला चैनल पे चल रही है, तो क्या ये जियो और एयरवाई पे भी चल रही है या नहीं चल रही है। तो वो ऑथेंटिसिटी, वो क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो मल्टीप्लाई होती जाती है। और उसमें अगर अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम मीडिया गलती कर जाए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सो इट्स अ चैलेंज फॉर द एंटायर मीडिया इंडस्ट्री, इट्स अ चैलेंज फॉर द जर्नलिस्ट। अब तो हर कोई जर्नलिज्म में आ गया है, एवरीवन। और जो जर्नलिज्म की बेसिक डेफिनेशन है, जो जर्नलिस्ट की बेसिक डेफिनेशन है कि मेरी तमाम तर आमदनी मेरी सहाफत से हो। मैं अगर कहीं एम्प्लॉई हूं, तो मेरी ये नहीं हो सकता कि मैं पार्ट टाइम जर्नलिज्म करूं। देयर इज नथिंग कॉल्ड पार्ट टाइम जर्नलिज्म। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि पार्ट टाइम जर्नलिज्म इसलिए डिस्करेज करने की जरूरत है क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इफ आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ, मैं किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, किसी वाटर बोर्ड में काम कर रहा हूं, किसी और जगह काम कर रहा हूं, साथ में मैं सहाफत भी कर रहा हूं, तो अगर आप उस इदारे के बारे में कोई खबर देंगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकार हो गए। इसलिए a journalist has to be a full-time employee of an organization, and that is the responsibility of that organization. क्या आप किसी को नौकरी दें तो फुल टाइम नौकरी दें। पार्ट टाइम जर्नलिज्म इज फार मोर डैमेजिंग, और उसमें फिर आपके पब्लिक इंटरेस्ट, और दैट इज व्हाई अ जर्नलिस्ट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कैन नॉट। मीडिया में ये होता है कि जिस तरह बहुत एक डिबेट है कि whether a journalist should be biased or unbiased, और बायसेस ये होते हैं कि बायसेस अगर मैं शो कर दूं ना, there is nothing wrong in it. अमेरिकन इलेक्शन होते हैं, जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि in these elections we will support Republicans, in these elections we will support Democrats.
तो जो पढ़ने वाला है उसको पता होता है कि मैं जो पेपर पढ़ रहा हूं वो रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको पता होता है कि मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन जब मैं ये कहूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, वहां आप अपने अपने व्यूअर्स से, अपने रीडर से झूठ बोल रहे होते हैं। तो चैनल्स को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह पार्टी पेपर्स होते हैं, पार्टी पेपर्स ये डिक्लेयर करते हैं कि ये जमात इस्लामी का तर्जुमान है, ये पीपल्स पार्टी का तर्जुमान है। लेकिन मैं दावा करूं कि मैं गैर जानिबदार हूं और दरअसल मैं किसी ना किसी पार्टी का मेंबर हूं। दूसरे जर्नलिस्ट शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये जो हमारे यहाँ सहाफत को सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वजारत तक, और फिर जब वजारत खत्म होती है तो वापस सहाफत में आ जाते हैं। ये सबसे ज्यादा मीडिया को डैमेज करती है चीज, और ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच्ड हो गया हूं, किसी गवर्नमेंट का मिनिस्टर बन गया हूं, तो फिर मेरे जब भी तज्जिया हो उसके नीचे ये लिखा हो, और मेरा कॉलम हो उसके नीचे लिखा हो कि साबिक सदारती तर्जुमान, साबिक वफाकी वजीर, साबिक एमएनए, तो जो पढ़ने वाला है वो समझ जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं वो चीज निकाल दूं और मैं अपने आप को शो करूं कि जी मैं बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं। तो जो आज का चैलेंज है फॉर द मीडिया इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ फाइट बिटवीन फैक्ट्स एंड फेक। फैक्ट सर्वाइव करेगा कि फेक सर्वाइव करेगा। जितना भी मीडिया एक्सप्लोर हो जाए, जितना भी डिजिटल मीडिया जो है वो करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हो, अल्टीमेटली सच सर्वाइव करता है। आज नहीं तो कल तारीख ये जरूर बताती है कि सच क्या था, और उस जनरेशन से हमने झूठ बोला। तो यही आज का चैलेंज है। सच और बदी की लड़ाई हमेशा से चली है, कभी बदी हावी आ गया, लेकिन अल्टीमेटली तारीख ने सच को साबित किया। इसलिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें, आप कोई भी अपना जो है वो ग्रुप चूज करें, बट इफ यू आर interested in journalism, if you are interested in mass comm, if you are interested in social media platform, if you are interested in mainstream media, there's one thing here, कि फेक से आप मिसगाइड कर रहे होते हैं अपनी नेशन को, और फैक्ट से आप गाइड कर रहे होते हैं अपनी नेशन को। थैंक यू।